Let's start with new topic, oscillations. Uh, it is having basically first definition of simple harmonic motion. So simple harmonic motion is a motion in which there is a restoring force always directed towards the mean position, and this force is always proportional to displacement from the mean position. So we have some equations at the beginning of this chapter, like A is equal to F by M, so it is minus kx by M, and this k by M is written as omega square, where omega is root of k by M, where omega is angular velocity. So this is the first expression which we may need at the time of solving MCQs. Next, we have differential equation of SHM. I am going to write it directly, I am not going to derive it. So differential equation of SHM is this is your differential equation of SHM, where again this k by m can be replaced by like this. Next, we have expressions of acceleration, velocity, and displacement. So quickly we'll see all these expressions. Very first, we'll see about acceleration. So acceleration is minus omega square x. This is the acceleration of the particle at any displacement x from the mean position, and the maximum acceleration is minus omega square a, where this a is amplitude of SHM. Amplitude means maximum displacement from the mean position. This is about acceleration. Then we'll come to velocity. So velocity v, the expression is omega root of a square minus x square. Again omega is angular velocity. A, sometimes they use the term angular frequency. So angular velocity and angular frequency both are same, that is equal to 2 pi n or 2 pi t. A is amplitude, x is displacement from the mean position. The velocity of the particle performing SHM will be maximum if it is at a mean position. So at mean position x is 0, so we have V max is equal to a omega. This is the expression for maximum velocity. Next we will have displacement. So displacement is x equal to a sine omega t plus alpha. Here a is amplitude, omega is again angular velocity or angular frequency. Alpha is called as initial phase or phase at time t equal to 0. It is also called as epoch of the system. Maximum displacement is plus minus a, that is amplitude. If the particle is starting from mean position, then the displacement equation becomes x is equal to a sine omega t. And if the particle is starting from extreme position, this is for mean position, and if the particle is starting from extreme position, the equation is a cos of omega t. So these are some important conclusions for displacement. Next we have UCM as a projection of UCM along its diameter. There is a derivation which is used to prove that the projection of UCM along its diameter is SHM. Next topic is I think it is kinetic energy and potential. Of course, they have given a graphical representation of velocity, displacement, and acceleration.
So you go through that graphical representation. अगर आपको चाहिए तो आई विल जस्ट रिवाइज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन. तो मीन पोजीशन के लिए 3 ग्राफ हमें मिलते हैं. सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट ग्राफ x, this is velocity graph, and this is acceleration graph. Of course not to the scale, but we can find out that there is a phase difference. ये velocity graph है and this is acceleration graph. Now phase difference between displacement and velocity is pi by 2. Phase difference between velocity and acceleration is again pi by 2, and phase difference between displacement and acceleration, it is pi. So these are graphs for the particle starting from mean position. You refer for the particle starting from extreme position from the textbook, and also the conclusions given after this discussion. These conclusions are important because MCQs may be asked on these MCQs. Okay, finally we have a period of SHM. So period of SHM, as you know, T is equal to 2 pi by omega. If omega is known, then it's okay. 2 pi by omega can be root of k by m. Or they have simplified this to, there is one more expression, T is equal to 2 pi by root of acceleration per unit displacement. This is another expression, so we can use this or this. After this we have kinetic energy and potential energy. Expression for kinetic energy is half m v square. Half m, instead of v we can write omega square a square minus x square, and m omega square can be replaced by k a square minus x square. This is expression for kinetic energy. Expression for potential energy is half k x square, and if we add these two, the total energy is half k a square. So we can say that the total energy of the particle performing simple harmonic motion, it is independent of x. That means displacement of particle from the mean position. So that means total energy is always constant for a particle performing simple harmonic motion. Total energy is always constant. Kinetic energy is maximum when x is 0. That means kinetic energy will be maximum when particle is at mean position. Potential energy will be maximum when the particle is at extreme position. Now next we have composition of two SHM. So in composition of two SHM, that means whenever we are having combination of two SHM at a single point, then definitely there will be some different displacement, and for to derive the displacement we use superposition principle. So the resultant amplitude of combination is given by R is equal to root of A1 square plus A2 square plus twice A1 A2 into cos of alpha 1 minus alpha 2. So this alpha 1 minus alpha 2 is basically phase difference between two SHM. This is resultant amplitude. Now if there are some special cases given, that means if the phase difference is 0, if phase difference is 0, that means cos of 0 is 1. So R is simply A1 plus A2. If this phase difference is pi by 2, then R is root of A1 square plus A2 square, and this phase difference is
pi 180 degree, in that case r is equal to a1 minus a2, because cos of 0, first case cos of 0 is 1, second case cos of 90 is 0, and third case cos of pi is minus 1. So using these conclusions we may face some numerical, some MCQs in your exam. After this, the last topic, second last topic I can say, is simple pendulum. So they have derived expression for period of simple pendulum. So period of simple pendulum can be 2 pi root of L by G. This is expression for period of simple pendulum, where L is length of simple pendulum and G is acceleration due to gravity at a particular position. So after deriving this expression, they have given laws of simple pendulum. So laws of simple pendulum are as follows, like T is directly proportional to root of length, T is inversely proportional to acceleration due to gravity. After that, T is independent of mass of the bob of simple pendulum, and T is independent of amplitude. That means if you increase the amplitude of SHM, period of the simple pendulum will not change. So these are some important laws. Again, on these laws you will face some numericals. Okay, next part is damped oscillations. So damped oscillations में याद रखना, देर आर बेसिकली टू फोर्सेस. एक तो फोर्स आपको पता है रिस्टोरिंग फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो रहता है is directly proportional to x, and hence restoring force is minus kx, and there is again damping force which is directly proportional to the velocity, and that's why we have damping force is minus the constant which they have used is b v, and using these two forces they have derived an expression, rather the differential equation. So the differential equation can be given by m d2x by dt square plus dx by dt plus x kx is equal to 0. This is the differential equation for damped oscillation, and they have also written expression for displacement as well as angular velocity as well as period. You go through the textbook, आपको वो expressions मिल जाएंगे. Expressions याद रखो, but न्यूमेरिकल्स बहुत कम पूछे जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर. नाउ विल स्टार्ट विथ आवर असाइनमेंट. So the first question of assignment is, it's very simple. Force constant of ideal spring is 200, K is equal to 200 Newton per meter, and it's loaded with a mass m which is given to be 200 upon pi square kg. So they are asking us period of its vibration. Period of vibration, now we know that omega is root of k by m. Omega is nothing but 2 pi by t is equal to root of k by m. So here squaring on both sides, I can write here 4 pi square by t square is equal to k by m. Now k is 200 and m is 200 upon pi square, which gives pi square. Ultimately what we have, 4 pi square by t square is equal to
pi square will get cancelled, t square is equal to 4 and hence t is equal to 2. So the answer for first question is B. Second question, is a particle executes SHM of amplitude 2 cm. At extreme position the force is 4 Newton. At a point midway between the mean and extreme position the force is बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, फिर से एक बार. एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर दी है. एट एक्सट्रीम पोजिशन द फोर्स इज 4 न्यूटन, यानी F as we know it is kx. So when x is equal to a, that is 2, F is equal to 2k and that is given to be 4 Newton, hence k is equal to 2. Now when x is equal to a by 2, that is 2 by 2, 1, F is equal to kx, that is 2 into 1, force is 2 Newton. Answer is A. सेकंड का आंसर है A. Question number 3. A particle executes SHM of time period 8 seconds and amplitude 4 centimeter. ठीक है. Find the speed of particle 2 seconds after it passes through mean position. ओके फाइन. अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, इसमें दो मेथड्स मिल सकती है आपको. एक तो बहुत ही सिंपल लॉजिकल मेथड है, बट एनीवे पहले देख लेते हैं व्हाट कैन बी द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. x is equal to 4 sine of 2 pi by 8t. Now why this? Because I should have written sine of omega t, but omega is 2 pi by t. Here period is 8 seconds, so that's why it is 2 pi by 8. Fine. This is displacement. So velocity will be what? 4 omega cos of omega t. It is basically dx by dt. So 4 omega is again 2 pi by 8 cos of omega t. Now listen again here. Now ये it is simply pi cos of 2 pi by 8 into t is 2 pi cos of pi by 2. Cos of pi by 2 is 0 and the velocity is 0. So answer is A. थर्ड का जो आंसर है वो है ए. एक और चीज़ आप इसमें देख सकते हो कि यार अगर पीरियड 8 सेकंड है एंड इट हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम मीन पोजीशन, सो 8 सेकंड अगर पीरियड है तो वो मोशन कैसी होगी, फिर यहाँ से यहाँ 2 सेकंड में जाएगा, यहाँ से यहाँ 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ 2 सेकंड और यहाँ से यहाँ फिर से 2 सेकंड. तो 2 सेकंड के बाद वो एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा. अगर जो स्टार्ट करता है मीन पोजीशन से, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी 0 रहेगी. एक दूसरी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें ये सब करने की जरूरत नहीं. अगर आपको क्लिक होता है वहाँ पे तो ठीक है, अदरवाइज ये मैथमेटिकल प्रोसीजर आपको करनी पड़ेगी. आगे नेक्स्ट थिंग इज पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM. Velocity of the particle is 5 centimeter per second when its displacement is 12 and velocity is 12 centimeter per second when its displacement 5. What will be frequency and amplitude? ठीक है, लग रहा है कि थोड़ा सा लेंदी है बट ठीक है, कोई बात नहीं. So we have expression v is equal to omega root of a square minus x square. So when the displacement is 12, velocity is 5. So 5 omega root of a square minus 12 square, and when displacement is 5, velocity is 12, a square minus 5 square. So we have these conditions. Now we can first find out a square.
सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एंड डिवाइडिंग बाय, राधा पहले इन दोनों को डिवाइड कर ले तो हमें क्या मिलेगा, 5/12 इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो हमें मिलेगा 25/144 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 144 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 25। अगर आप इन सबको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको यहाँ पे एम्पलीट्यूड मिल जाती है एंड आपको यहाँ पे एम्पलीट्यूड मिल जाती है 13। आई होप यू कैन सॉल्व दिस कैलकुलेशंस। वंस यू गेट a इज इक्वल टू 13 यू कैन पुट दिस वैल्यू हियर। a इज इक्वल टू 13 आप किसी भी एक दोनों में से एक जगह पे a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्योंकि आपको वेलोसिटी पता है, बाकी सारी चीज़ पता है आपको, ओमेगा, एंड ओमेगा से आपको फ्रीक्वेंसी मिल सकती है। सो हियर वी आर गेटिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई। सो द आंसर इज, ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, वी हैव ऑप्शन सी। सो फोर्थ का जो आंसर आ रहा है दैट इज सी। Question number 5. So question number 5 is, simple harmonic oscillator has displacement of 0.02 meter and acceleration equal to 2 meter per second square at any time the frequency of oscillation will be। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक्सेलरेशन दिया है और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे ये ए मैंने एक्सेलरेशन के लिए यूज़ किया है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब मुझे एक्सेलरेशन उन्होंने दिया है वो आ रहा है 2, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो ओमेगा कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो इट इज 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एंड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन टू बी 0.02। तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 0.02 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, ये आपका आंसर मिल जाता है 100। 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, सो एन स्क्वायर इज 100 अपॉन 4 पाई स्क्वायर। सो एन मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 10, सॉरी, एन आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट इट इज 10 अपॉन 2 पाई। सो कैलकुलेशंस के बाद ऑप्शंस कैसे दिए हैं इन्होंने, यस ऑप्शंस थोड़े कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। सो ऑप्शंस के बाद मुझे यहाँ पे आंसर मिलता है 1.59। आई होप ये कैलकुलेशंस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ क्लोज टू 6.28। 10 अपॉन 2 पाई इज क्लोज टू 1.5। सो एन इज इक्वल टू 1.59 हर्ट्ज, ये आपका आंसर मिल जाता है। सो फिफ्थ का आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम इफ पीरियड ऑफ एसएचएम इज टी इज, ओके। मैक्सिमम वेलोसिटी अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा। नाउ हियर ए इज एम्पलीट्यूड, सो क्या दिया है यहाँ पे, ओके कोई बात नहीं, ए एज इट इज 2 पाई बाय टी। तो आपको आंसर यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 पाई ए बाय टी। आपका जो आंसर यहाँ पे मिल रहा है 6 का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज, differential equation for a particle performing linear SHM is given by d2x by dt square plus 2x, where x is displacement of the particle. The frequency of oscillatory motion is, okay, फिर से d2x by dt square plus 2x is equal to 0. Comparing this with
d2x by dt square is equal to omega square x equal to 0. ओमेगा स्क्वायर इज 2. यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू हमें मिल रही है दैट इज 2. हाँ जी, तो ओमेगा स्क्वायर यानी फिर से 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पूछा गया है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो यानी ये हमने बराबर लिखा ओमेगा इज 2 पाई, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 10. सो एन स्क्वायर इज 2 अपॉन 4 पाई स्क्वायर. ऑप्शन उसको कौन से फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, हो जाएगा. सो एन आपको कितना मिल रहा है, ये मेरे ख्याल से 1/√2 पाई ऐसा कुछ आंसर आ रहा है. यस, वी हैव ऑप्शन डी. तो 7 का जो आंसर है दैट इज डी. इसके बाद नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. The velocity of the particle undergoing SHM is v at the mean position. If the amplitude is double, the velocity at the mean position will be. सबसे पहले v is equal to ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन है. तो v मैक्स बेसिकली वो v ही दिया है, वो है a ओमेगा व्हेन एम्पलीट्यूड इज a. अगर मैं एम्पलीट्यूड को डबल करता हूं तो लेट इट बी v डैश, सो v डैश इज 2a ओमेगा, यानी ये 2v हो जाएगा. तो मेरा जो यहाँ पे आंसर आ रहा है दैट इज आंसर ए. सो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ रहा है ए. यहाँ पे एक और डाउट शायद आपको मन में आ सकता है कि अगर हम एम्पलीट्यूड को बढ़ा देंगे तो ये ओमेगा वगैरह वगैरह सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी. ऐसा नहीं है, हमें पता है कि पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, इसीलिए यहाँ पे ओमेगा में कोई चेंज नहीं रहेगा एंड हेंस न्यू मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी 2v. क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर and maximum velocity 16 meter per second, then the amplitude of SHM is. okay, तो maximum acceleration दिया है, वो दिया है 24 मीटर पर सेकंड एंड मैक्सिमम वेलोसिटी दी है, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी दी है 16 मीटर पर सेकंड. अब हमें पता है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन यानी क्या होता है. अब यहाँ पे मुझे थोड़ा ना ए को मैं कैपिटल ए ले लेता हूँ. सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ए ओमेगा स्क्वायर और मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा. और यहाँ पे उन्होंने हमको एम्पलीट्यूड ही पूछा है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो डायरेक्टली नहीं मिलेगा. पहले हमें इन दोनों का रेशियो लेके ओमेगा निकालना पड़ेगा और ओमेगा निकालने के बाद हमें ए मिलेगा. तो अगर मैं रेशियो लेता हूँ ए बाय वी दैट इज नथिंग बट 24/16 दैट इज इक्वल टू ये 6/4 यानी 3/2 इक्वल टू ओमेगा. सो ओमेगा आ रहा है 3/2. ओके, अब ये ओमेगा की वैल्यू जो है 3/2 विल पुट इन दिस इक्वेशन. सो v इज इक्वल टू ए ओमेगा. सो 16 इक्वल टू a 3/2, a इज इक्वल टू 16 इंटू 2/3. तो आपका जो आंसर यहाँ पे आना चाहिए दैट इज 32/3. ऐसा कुछ मिल रहा है हमें. यस, इट इज ऑप्शन ए. सो 9 का जो आंसर है दैट इज ए. फाइन. इसके बाद a simple harmonic oscillator has amplitude A and time period t. The time required by it to travel from x is equal to a to x is equal to a/2 is. कहाँ से शुरू कर रहा है, x is equal to a. ये SHM है, इट स्टार्टिंग फ्रॉम एम्पलीट्यूड a. तो उसे यहाँ a/2 तक आने के लिए कितना समय लगेगा.
तो फॉर दैट वी विल टेक इक्वेशन ऑफ एस एच एम एज एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। कॉस ऑफ ओमेगा टी क्यों? बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन से वो यहाँ जा रहा है, तो अब डिस्प्लेसमेंट इसकी x कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगा, ये a/2 ही रहेगा। सो a/2 a cos ऑफ ओमेगा टी। तो इस प्रकार से cos ऑफ ओमेगा टी जो मुझे मिल रहा है दैट इज 1/2 a कैंसिल हो रहा है। सो इसका मतलब ओमेगा टी जो है दैट इज π/3 ओमेगा 2π/t इंटू टी इज इक्वल टू π/3। तो पाई कैंसिल हो रहा है एंड t इज इक्वल टू t/6। ये आंसर मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सो ऑप्शन इज, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ए। सो 10th का जो आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 11, so question number 11 is the equation of SHM with amplitude phi and time period 0.5 second is, अच्छा ठीक है, टाइम पीरियड दिया है 0.5 सेकेंड, एम्पलीट्यूड दिया है फाई। तो देखते हैं हमारे पास इक्वेशन जो है वो होता है x इज इक्वल टू ए ओमेगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ए साइन ऑफ 2π/t इंटू टी। मैं टी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पीरियड वहाँ पे दिया है। तो एम्पलीट्यूड है आपका फाई, साइन ऑफ 2π/0.5 टी। ये मेरे ख्याल से आंसर मिलता है 5 साइन ऑफ 4π/t। तो आपका जो 11th का आंसर आ रहा है दैट इज आंसर ए। यस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल सिस्टम इज गिवन बाय x इक्वल 0.01 sin of 100πt प्लस 0.05 द टाइम पीरियड इज, अच्छा ठीक है, x इज इक्वल टू 0.01 साइन ऑफ 100πt प्लस 0.05, ठीक है, यानी ये 0.01 साइन ऑफ 100πt प्लस 100π इंटू 0.05, ये इतना ज़रूरी है हमारे लिए, ज़रूरी है ये, क्योंकि इसको अगर मैं साइन ऑफ ओमेगा टी से कंपेयर करता हूँ तो ओमेगा इज 100π पूछा गया है, यहाँ पे उन्होंने पीरियड पूछा है। सो 2π/t इज इक्वल टू 100π, t इज इक्वल टू 2/100, तो ये आता है कितना, t/100 इट इज 0.02 सेकेंड। तो 12th का जो आंसर है वो है कितना दिया है, बी। A horizontal platform vibrates up and down with amplitude of 10 centimeter and period 2π/7. If the body of mass 2 kg is kept on the platform, then the maximum thrust exerted by the body on the platform is. यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जो कि अप डाउन मोशन कर रहा है और एक मास यहाँ पे रखा है, मास है 2 kg का। यस, सो उन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड बाय दिस मास ऑन दिस प्लेटफॉर्म वो कितना रहेगा। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मास जब डाउन से ऊपर जा रहा है, यानी वो डाउन मोस्ट साइड में है, सबसे नीचे वाली पोजीशन पे है,
तब वो फोर्स मैक्सिमम अप्लाई करेगा, और शायद वो हमें पता है कि F इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए, इतना फोर्स वो अप्लाई करेगा। यहाँ पे 2, ये 9.8 प्लस ये एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन जो है ये हमें पता होना चाहिए। अब ये एक्सेलरेशन यानी ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो रहेगा वो ए मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब मैं ना इसको ए ही लिख देता हूँ, यानी वो सिम्बॉल्स में गड़बड़ नहीं होगी। तो ये ए मैक्स ओमेगा स्क्वायर ए, सो ओमेगा स्क्वायर कितना रहेगा आपका, पीरियड दिया है 2π/7, सो 4π² बाय टी स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड कितनी दी है 0.1। तो अगर आप ये एक्सेलरेशन निकालते हो तो ये एक्सेलरेशन हमें मिलेगा, अब देखो 4π² टी, पीरियड कितना दिया है 4π² इंटू 49 इंटू 0.1, तो ए आपको मिल रहा है 4.9 मीटर पर सेकंड। अब ये ए की वैल्यू यहाँ पुट करो, सो फोर्स इज 2 इंटू 9.8 प्लस 4.9, मेरे ख्याल से ये आंसर आएगा आपका 29.4 के आसपास ये आपको आंसर मिलता है। सो आपका जो आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, द आंसर इज डी। यस, इट इज आंसर डी। अगर ये नहीं समझा तो इसके लिए आप वो लिफ्ट वाली केस समझ लो कि लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो जो नॉर्मल रिएक्शन जो रहती है वो रहती है m इंटू जी प्लस ए। तो ये सिमिलर मेथड से हमने ये फोर्स निकाला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, each piston of a car engine has mass 1 kg and stroke of 10 centimeter. If the engine operates at 3000 rpm, then the maximum force acting on it. पहले तो फ्रीक्वेंसी दी है 3000 rpm, यानी 3000 बाय 60 rps, तो वो आती है 50 rps। तो फ्रीक्वेंसी आपकी मिल गई 50 rps। इसके बाद मैक्सिमम फोर्स, तो फोर्स मैक्सिमम कब रहेगा, जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम रहेगा। सो फोर्स इज ए मैक्स इंटू मास, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास जो है आपका कितना दिया है 1 kg, सो 1 इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन यानी ओमेगा स्क्वायर ए, वेयर ए इज एम्पलीट्यूड। अब याद रखना इंजन जो रहता है उसकी ये पिस्टन है और उसका जो स्ट्रोक दिया है वो दिया है 10 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड कितना हुआ, एम्पलीट्यूड आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। याद रखना इंजन ये ऐसे पिस्टन जो है वो ऐसे आगे पीछे मूव होती रहेगी, तो उसमें जो स्ट्रोक यानी ये टोटल लेंथ जो है पाथ जिसे बोलते हैं हम पाथ ऑफ एसएचएम या पाथ लेंथ ऑफ एसएचएम, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो अब 4π² n स्क्वायर और एम्पलीट्यूड इज 0.05, इसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको जो आंसर यहाँ पे मिलेगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 14, तो 14 का जो आंसर आपको मिलेगा दैट इज अराउंड 5000 न्यूटन। ये आपको आंसर मिलेगा 5000 न्यूटन, यानी ऑप्शन बी, 14 का ऑप्शन बी आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कह रहा है? अ ब्लॉक रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एग्जीक्यूट्स एसएचएम इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ एम्पलीट्यूड ए। ब्लॉक रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फॉर विच द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट टू स्लिप इज, यानी क्या, एक सरफेस है हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स रखा है एंड सरफेस इज ऑसिलेटिंग। सो उन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम ये फ्रीक्वेंसी पूछी है ना, yes the frequency, maximum frequency so that the box remains on the surface। अब बॉक्स जो है सिर्फ रखा है ऑन द सरफेस और वो ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड सरफेस। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एफ विच इज माइनस के ए, वेयर ए इज एम्पलीट्यूड एंड एक मिनट, क्वेश्चन क्या है पहले मुझे देख लेना। एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए, तो चलिए ये एम्पलीट्यूड अब ये है पे ए है, ठीक है। फाइन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये निगेटिव को मैं अभी निगलेक्ट कर रहा हूँ, ये ओमेगा स्क्वायर एम ए, के की जगह ओमेगा स्क्वायर एम ए एंड दिस इज इक्वल टू म्यू एम जी। सो ये एम एम कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए इज इक्वल टू म्यू जी, ओमेगा की जगह 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए इज इक्वल टू म्यू जी। सो एन वी आर गेटिंग हियर, एन जो हमें यहाँ पे मिल रहा है दैट इज, पहले तो एन स्क्वायर निकाल, तो एन स्क्वायर जो है दैट इज 1/4 पाई स्क्वायर म्यू जी बाय ए। सो एन वी आर गेटिंग 1/2 पाई रूट ऑफ म्यू जी बाय ए। ये 15 का जो ऑप्शन मुझे मिल रहा है दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 16। A particle of mass 0.5 kg executes SHM. Its period of oscillation is 31.14 seconds and its total energy is 0.04 joule. Its amplitude is, ये कौन सा आ गया? ठीक है, a particle of mass its period of oscillation is 31.14 second and its total energy is 0.04 joule. Its amplitude is okay. तो टोटल एनर्जी हमें पता है, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज एम ओमेगा स्क्वायर ए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सो ये एनर्जी रहती है, टोटल एनर्जी। सो अब यहाँ पे उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है, सबसे पहले तो मास दिया है। आई थिंक वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो पीरियड दिया है हाफ, मास कितना दिया है आपको 0.5 kg। सो ये 1/2 ओमेगा स्क्वायर 3.14 सेकंड, 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड पूछा है उन्होंने। टोटल एनर्जी गिवन इज 0.04 जूल, ठीक है। इट्स एम्पलीट्यूड इज, अब अगर आप ये कैलकुलेशंस कर सकते हो तो ये 4 कैंसिल हो रहा है,
So a square is 0.04 into t square by pi square. तो a जो मिलता है मुझे वो है 0.2 इंटू टी अपॉन पाई. और लेट मी कंफर्म द वैल्यू ऑफ टी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि टी में मुझे थोड़ा डाउट है. 31.14. ठीक है, फिर भी देख लेते, चेक कर लेते हैं. 0.2 इंटू 31.14 अपॉन पाई 3.14. एक्चुअली एक गड़बड़ है उस क्वेश्चन नंबर 16 में. द वैल्यू ऑफ टी शुड बी 3.14, इट इज़ नॉट 31.14. ये करेक्शन आप वहाँ पे कर लेना, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है. सो बेसिकली ये 3.14 ही है और ये कैंसिल होके आपका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज 0.2 मीटर यानी 20 सेंटीमीटर आता है. क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो है वो बी आता है. सो इसे बस आप करेक्ट कर लो अपने डीपीपी में. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? At what displacement kinetic energy of particle performing SHM is 3 times its potential energy. ठीक है, so kinetic energy half k a square minus x square is equal to 3 times half k x square. 3 times potential energy, ये kinetic energy है which is equal to 3 times potential energy. हाफ के कैंसिल हो रहा है यहाँ पे. a square minus x square is equal to 3x square. A square 4x square is equal to a square by 4. x is equal to a by 2. तो आपका जो आंसर यहाँ पे आता है वो है बी. तो 17 का आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18. An object of mass 0.2 kg executes SHM along x-axis with a frequency of 25 by pi hertz. At position x is equal to 0.04 meter, the object has kinetic energy 0.5 joule and potential energy 0.4 joule. The amplitude of oscillation is. Okay, ये क्वेश्चन नंबर 18. तो ये यहाँ पे हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी जो दी है दैट इज 0.5 जूल एंड हाफ के एक्स स्क्वायर दैट इज पोटेंशियल एनर्जी जो दी है वो है 0.4 जूल. एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पूछा है. तो ये अगर मैं इन दोनों का रेशो लेता हूँ तो रेशो लेने के बाद मुझे मिलता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. हाफ के कैंसिल हो जाएगा. इट इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 0.4. सो यानी 5/4. तो मैं अगर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता तो 4a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर. 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर. सो a स्क्वायर इज 9/4 x square and therefore a is equal to 3/2 x
3/2, x की वैल्यू यहाँ पे दी है, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन दैट इज 0.04, तो ये 3 इंटू 0.02 आ रहा है, तो ये 0.06, ये हमारा आंसर आता है एंड दैट इज आंसर ए। सो 18 का जो आंसर आ रहा है दैट इज ए। यहाँ पे एक और टर्म दी है फ्रीक्वेंसी दैट इज 25/π, जिसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप इस मेथड से करते हो तो। क्वेश्चन नंबर 19. So question number 19 is the kinetic energy of particle in SHM is equal to its potential energy when its displacement is. ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार शायद आप लोगों ने इसको किया होगा। सो ये होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के कैंसिल एंड हेंस वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो ए स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज ए स्क्वायर बाय 2, x is equal to a by root 2. तो अब इसका क्या मतलब है? सो ये 1/√2 is 0.707 of a. तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, सो इट इज 70% ऑफ a अप्रोक्सीमेटली, ये 70.7 चाहिए था बट स्टिल 70% ऑफ ए। तो आपको जो आंसर यहाँ पे मिलता है दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 20, the total energy of particle of mass 0.02 kg executing SHM is, ठीक है, the maximum velocity is, okay, टोटल एनर्जी आपके पार्टिकल की दी है और वो दी है 6.25 और इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है। तो टोटल एनर्जी हमें पता है इट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर and it is given to be 6.25 into 10 raised to minus 8 joules, ठीक है। अब मास जो दिया है दैट इज 0.02 kg, सो 0.02 अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 6.25 इंटू 10 रेज टू माइनस 8, तो ये 0.01 हो जाएगा और हमें मिलता है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज 6.25 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, क्योंकि यहाँ 10 रेज टू माइनस 2 10 रेज टू माइनस 8, तो वो 10 रेज टू माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर जो यहाँ पे मुझे मिलेगा, अगर आपको चाहिए तो ये 6.25 जो है इट इज़ आई थिंक स्क्वायर ऑफ 2.5, तो इसको मैं डायरेक्टली अगर स्क्वायर रूट करता हूँ तो 2.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, सो ए ओमेगा पता होगा आपको, ए ओमेगा इटसेल्फ इज मैक्सिमम वेलोसिटी, सो वी मैक्स इज 2.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। आंसर है ऐसा कुछ आपके पास? यस, इट इज ऑप्शन बी। सो 20 जो है उसका आंसर आ रहा है बी। (21) A particle is subjected to two SHMs x1 and x2. The resultant SHM have amplitude. अब सबसे पहले अगर दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं तो उनमें जो फेज डिफरेंस आ रहा है, तो वो जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो है π/3 का। एक है साइन ओमेगा टी और दूसरा है साइन ओमेगा टी प्लस π/3, तो इसलिए दोनों में जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है π/3 का। रिजल्टेंट इक्वेशन के लिए सब, और दूसरी चीज़ है a1, पहले की जो एम्पलीट्यूड है दैट इज 3 और दूसरे की जो एम्पलीट्यूड है दैट इज 2। सो नाउ
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें पता है इट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ फेज डिफरेंस। सो ये 4 प्लस सॉरी ये 9 प्लस 4 प्लस ट्वाइस 2 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 3। कॉस ऑफ पाई बाय 3 जो है वो है 1/2। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1/2, तो ये बचता है 9 प्लस 4 प्लस 6। सो ये 13 और 6 ये रूट ऑफ 19, ये आपका आंसर आ रहा है। सो 21 का जो आंसर है दैट इज डी। Now next we have question number 22. So यहाँ पे उन्होंने कहा है कि the length of simple pendulum will increase by 44%, then percentage increase in time period is. So सबसे पहले L2 by L1 I can directly write it is 144 by 100. I hope ये आपको समझ में नहीं आया होगा, तो ठीक है, नहीं तो ये याद रखो L2 is 44 by 100 L1 plus L1, तो ये आता है 144 by 100। ओके, इसके बाद तो परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड हमें पता है कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ l। सो t2 बाई t1 इज इक्वल टू रूट ऑफ l2 बाई l1, एंड l2 बाई l1 जो आ रहा है दैट इज रूट ऑफ 144 बाई 100, दैट इज 12 बाई 10। जो उन्होंने पूछा है वो है, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि T2 इज 12 बाई 10 इंटू T1। तो मैं यहाँ पे ये मुझे ये चाहिए T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू 100, ये क्वांटिटी मुझे चाहिए। तो इसके लिए सीधा सीधा है ये 12 बाई 10 माइनस 1 इंटू 100। अगर मैं ये कहाँ से आया, इसमें अगर मैं T2 की जगह 12 बाई 10 T1 यहाँ पे पुट करता हूँ तो मुझे ये डायरेक्टली मिलता है, क्योंकि T1 कैंसिल हो जाता है, बचता है सिर्फ ये। सो ये होता है 2 बाई 10 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 20%। तो 22 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बी। नेक्स्ट है 23। सो 23 क्वेश्चन ये कह रहा है कि a simple pendulum has spherical empty bob of mass 50 gram, its period is 2 seconds. Now the bob is replaced by another solid bob of same radius, but mass is 100 gram. The new time period will be, आपको पता है कि the time period is independent of मास। तो मास कुछ भी रखे, अगर आपका L एंड G कांस्टेंट है सो T इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो आंसर है वो रहेगा 2 सेकंड्स। तो 23 का आंसर रहेगा बी, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड बिल्कुल चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भले ही मास चेंज हो रहा है बट टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये याद रखना, ये लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है कि द मास एंड डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट आर ट्वाइस दोज ऑफ, और द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम ऑन दिस प्लैनेट विल बी। और ये जो पेंडुलम यहाँ पे एज्यूम किया गया है वो पेंडुलम है सेकंड्स पेंडुलम। तो सेकंड्स पेंडुलम का पीरियड रहता है 2 सेकंड। तो ठीक है, T1 2 सेकंड्स, T2 हमें निकालना है, उसके लिए हमें G2 बाय G ये निकालना पड़ेगा। G1 ले लो यहाँ पे, तो G2 हमें पता है कि GM2 बाय
R2 स्क्वायर और ये G m1/r1 स्क्वायर, यानी m2/m1 इंटू r1/r2 का स्क्वायर। हाँ जी, तो m2/m1 मास उसका कितना है, मास एंड डायमीटर दोनों ट्वाइस है, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये 1/2 आ रहा है। सो G2। और अब नेक्स्ट इज, हमें पता है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ G। सो देयरफॉर T2/T1 इज इक्वल टू रूट ऑफ G1/G2। सो G1/G2 जो आ रहा है वो आ रहा है 2/1। सो T2 is equal to T1 into √2, that is 2√2। सो जो नेक्स्ट पीरियड आपको मिलेगा that is equal to 2√2, एंड आपका जो आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा 24 का जो आंसर मुझे मिल रहा है 2√2, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी। सो 24 ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट इज 25। So 25, क्वेश्चन नंबर 25, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम इज रिड्यूस्ड बाय 20%। यहाँ पे एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है पेंडुलम का। द परसेंटेज चेंज इट्स टाइम पीरियड इज, यहाँ पे पेंडुलम का टाइम पीरियड बिल्कुल चेंज नहीं होगा। इसके लिए आपको पता होगा लॉ ऑफ आइसोक्रोनस। तो लॉ ऑफ आइसोक्रोनस ये बोलता है कि द पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। आपने एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा भी कर दिया तो भी पीरियड चेंज नहीं होगा, तो इसकी वजह से देयर बी 0% चेंज इन टाइम पीरियड। सो 25 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। सो दैट्स ऑल। ये असाइनमेंट देख लो, रिवाइज कर लो। नेक्स्ट वी विल हैव इलास्टिसिटी।